Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Hopefully everyone is fine. Today we have to discuss about life cycle of human immunodeficiency virus, that is the HIV virus, from chapter 5 A Cellular Life for class first year biology. Now first we discuss about the learning objective. Today we want to understand the life cycle of human immunodeficiency virus, that is HIV virus, which is responsible for the AIDS, that is the acquired immunodeficiency syndrome. Then we have to discuss about the symptom of AIDS, also discuss about the opportunistic invasions. Then we have to discuss about the treatments of AIDS. At last we have to discuss about the transmission and prevention of AIDS. Now first we discuss about the life cycle of human immunodeficiency virus, that is the HIV virus. When this virus attacks to the host cell and they are responsible to attack the special immuno cells, that is the T lymphocytes, and responsible for the AIDS, that is this system destroy our immunity of our body. The first step of the HIV virus is the binding and fusion. When the HIV virus binds to the T lymphocytes cells, basically T lymphocytes is the part of our immunity cells, and they have the special receptor sites, that is the CD4 receptor sites. When this virus binds with the CD4 receptor sites, then it is responsible for causing the disease, that is AIDS. When this virus recognizes and lands on CD4 receptor site, with the help of the spike, it fuses its envelope with the host membrane. In our previous lecture, we have already discussed about the structure of the HIV virus. Spike basically consists of two parts, that is cap and stem, which is made up of the glycoprotein and which is recognized by the HIV virus and bind to it, and they are responsible for the fusion of the HIV virus. When HIV virus fuses to the host cell, then HIV virus transfer their genetic material into the host cell and leaving the envelope behind the होस्ट बॉडी. जब आपके पास HIV वायरस रिकॉग्नाइज कर लेता है CD4 रिसेप्टर साइट्स को ऑन T लिम्फोसाइट्स, तो वो उसके साथ बाइंडिंग कर लेगा. जब उसकी बाइंडिंग हो जाती है तो जो HIV वायरस का एनवेलप है उसमें से जो है जेनेटिक में वो एनवेलप, तो उसमें क्या होगा, उसको फ्यूजन में हेल्प कर रहा है, बाइंडिंग में हेल्प कर रहा है. फर्दर मोर क्या करेगा, जो होस्ट सेल का जेनेटिक मटेरियल है वो रिलीज होगा और वो होस्ट सेल के अंदर मूव कर जाएगा, और जो उसकी होस्ट जो वायरस का एनवेलप है वो होस्ट सेल के बाहर रह जाएगा. इस तरह जो है वो जेनेटिक मटेरियल जो है RNA HIV का जेनेटिक मटेरियल जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड वो मूव कर जाता है होस्ट सेल के अंदर. फर्दर मोर HIV वायरस के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है which is responsible for the synthesis of DNA, that is called reverse transcription. आपने प्रोसेस पढ़ा हुआ है कि ट्रांसक्रिप्शन में जो है आपके पास DNA से RNA बनता है, that is called ट्रांसक्रिप्शन. लेकिन यहाँ पे RNA से DNA बन रहा है, that's why it is considered as a reverse transcription with the help of a special enzyme, that is the
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जब HIV वायरस DNA को बना देता है विद द हेल्प ऑफ RNA, और जो एंजाइम यूटिलाइज करते हैं उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, देन सच DNA इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री DNA। तो इसको हम ऐसे DNA को क्या कहेंगे जो RNA से बना है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री DNA कहते हैं। फर्दरमोर जब वायरल DNA जो है इनसाइड द होस्ट सेल के जो है वो जब मूव करता है और होस्ट सेल के न्यूक्लियस का पार्ट बन जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, देन कैसे ये जो है न्यूक्लियस का पार्ट बनेगा इनटू द होस्ट DNA विद द हेल्प ऑफ द इंटरगैरेज। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ HIV पढ़ा था कि ये जो इंटरगैरेज है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ द DNA मॉलिक्यूल्स। ये DNA को जो है आपस में बाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो वायरल DNA वो बिकम द पार्ट ऑफ द होस्ट सेल DNA, वो होस्ट सेल के DNA के साथ उसको बाइंड कर देगा। देन दिस वायरस या दिस DNA इज नोन एज प्रो वायरस। अब जो ये जो न्यूक्लिक एसिड है जिस होस्ट सेल ने वायरल DNA कंटेन किया हुआ है, अब हम इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम प्रो वायरस कहेंगे। जिसने कॉम्प्लीमेंट्री DNA को कंटेन किया होगा होस्ट सेल ने उसको हम प्रो वायरस कहेंगे। तो इंटीग्रेशन की मदद से क्या होता है कि इंटरगैरेज जो है वो जो कॉम्प्लीमेंट्री DNA वो DNA जो है होस्ट सेल का उसके साथ बाइंड कर देता है, और उससे जो एक जो अब नया न्यूक्लिक एसिड बने जो और होस्ट सेल जो कहलाएगा वो हमारे पास प्रो वायरस कहलाएगा। फर्दर मोर अब क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होगी। ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली क्या होगी कि HIV DNA जो है वो ट्रांसक्राइब्ड होगा मैसेंजर RNA में, एंड दिस मैसेंजर RNA ट्रांसफर इनटू द साइटोप्लाज्म वेयर द राइबोसोम इज प्रेजेंट, एंड दिस राइबोसोम कन्वर्टेड रीड्स द मैसेंजर RNA एंड मेक्स द HIV प्रोटीन्स एंड देयर एंजाइम्स। अब क्या होगा कि सबसे पहले तो ट्रांसक्रिप्शन होगी जिसकी मदद से मैसेंजर RNA बन जाएगा। फिर उसके बाद जब मैसेंजर RNA बनेगा तो साइटोप्लाज्म में वो जब मूव कर दिया जाएगा तो उसको राइबोसोम रीड करेंगे और उसके मुताबिक HIV प्रोटीन्स और एंजाइम्स बनाएंगे। तो इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। फर्दर मोर क्या होगा, जब ये इसकी प्रोटीन्स और एंजाइम्स बन जाएंगे आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ द लॉन्ग स्ट्रैंड्स और वायरल प्रोटीन्स देन कट एट स्पेसिफिक साइट्स बाय प्रोटीएज एंजाइम। जब वायरल प्रोटीन्स बनती जाएंगी तो उनको जारी बात है उनको वायरल प्रोटीन्स को की जो चेन है उसको स्पेसिफिक साइट से प्रोटीएज बेसिकली एंजाइम है जो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स को, उनको स्पेसिफिक कट किया जाएगा ताकि जो है जो उनकी वायरल प्रोटीन्स है वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स की असम्बली हो सके। देन दीज प्रोटीन आर असेंबल्ड इनटू न्यू HIV पार्टिकल्स। अब बेसिकली ये जो आपके पास जो प्रोटीन असम्बली हुई है, जो प्रोटीन बनी है, उनको क्या किया जाएगा, पैकिंग की जाएगी ताकि जो है न्यू HIV पार्टिकल्स बन सकें। और प्रोटीन कोड जो है एट द एंड क्या होगा, आपके पास जो कैप्सिड है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल है और HIV एंजाइम्स उनको कैप्सिड के अंदर पैक कर दिया जाएगा। और इसी तरह जो प्रोटीन्स और वो सारा सराउंड कर लेंगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, असम्बली उसकी कंप्लीट हो जाएगी। और वो HIV वायरस की पूरी जब असम्बली हो जाती है तो उसके बाद उसका न्यूक्लिक एसिड वगैरह जब पैक कर दिया जाता है तो हमारे पास HIV वायरस के पार्टिकल्स रेडी हो जाते हैं। तो ये आपके पास जो स्टेप लगाएगा ये हमारे पास बेसिकली HIV वायरस की असम्बली और मैचुरेशन हो रही है, जिसके अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स और एंजाइम्स भी बन रहे हैं और न्यूक्लिक एसिड की पैकिंग हो रही है कैप्सिड के अंदर, और इसके नतीजे में हमारे पास क्या आ रहे हैं, HIV पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर फर्दर मोर जब HIV पार्टिकल्स बन जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, देन दे आर रिलीज थ्रू द बडिंग फ्रॉम द सेल एंड टेकिंग द होस्ट सेल मेम्ब्रेन अलोंग एज इन्वेलप। अब क्या होगा कि जब HIV वायरस के पार्टिकल्स मैच्योर हो जाते हैं, HIV पार्टिकल्स बन जाते हैं, तो अब उनको सेल से क्या किया जाता है,
बाहर निकाल दिया जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ बडिंग। बडिंग आपको पता है कि वो क्या सेल आउटग्रोथ बन जाएगी होस्ट सेल में, और वो सेल मेम्ब्रेन को एज अ कवर के तौर पे यूटिलाइज कर लेगा, तो अपने गिर्द जो है सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग बनाएगा जिसे हम एनवेलप कहते हैं। और जब वो एनवेलप बना के HIV वायरस जो है वो क्या करेगा, एज अ बडिंग जो है वो रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द होस्ट सेल, और उसके बाद दे आर रेडी टू अटैक द अनदर हेल्दी पर्सन, और फिर उसके बाद उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को जो है वो अटैक करके उसके टी लिम्फोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करेगा और अल्टीमेटली इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता जाएगा। तो क्या होता है, HIV वायरस जो है वो टी लिम्फोसाइट्स पे अटैक करते जाते हैं जो हमारे इम्यूनिटी का हिस्सा हैं, जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत का हिस्सा है, ताकि वो, और जब हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत वीक हो जाती है तो बेसिकली जो है हमें डिफरेंट डिजीज़ काज हो जाती है। और इसकी वजह से जो हमें जो मेजर जो ये डिजीज़ काज करते हैं उसे हम कहते हैं एड्स। और एड्स में क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और आपको ये बात याद रखनी है कि हमने इसको आखिरी में हम इसे सिंड्रोम जो कह रहे हैं कि एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम जिसके लफ्ज़ का मतलब ये होता है कि डिफरेंट डिजीज़ आर अकर्ड इन दिस पेशेंट। क्या होगा, जो दूसरी डिजीज़ भी हैं वो भी इस पेशेंट के अंदर अकर होंगी। तो ये HIV वायरस के बारे में था कि HIV वायरस कैसे जो है वो अपनी लाइफ साइकिल को मुकम्मल करता है और कैसे जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करेगा, और बेसिकली ये हमारे टी लिम्फोसाइट्स को वीक कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो इम्यूनिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब हम इसे डायग्राम से डिस्कस करते हैं। तो पहले स्टेप में क्या होती है, बाइंडिंग होती है। बाइंडिंग ये देखें, ये स्पाइक वो हमने पहले आपको बताया था, स्पाइक जिसके हम स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हुए हैं। ये आपके पास कैप है, ये स्टैम्प है, और ये जो है बेसिक रिसेप्टर साइड जो CD4 रिसेप्टर साइड है उसके साथ अटैच हो जाएगी। जैसे इसकी बाइंडिंग होगी तो फिर फ्यूजन होगी। फ्यूजन में क्या होगा कि उसके जो न्यूक्लिक जो आपके पास वायरस के एंजाइम्स और जो DNA मटेरियल है वो इंसर्ट हो जाएगा इनटू द होस्ट सेल। फिर इसके बाद आपके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस आ जाएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द DNA that is a complementary DNA. It makes it from RNA into DNA. That's why this DNA is called the complementary DNA. और ये आपके पास क्या बन गया, complementary DNA बन गया। एंड दिस DNA, अब चौथा स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेज एंजाइम एंड दिस DNA बिकम द पार्ट ऑफ द होस्ट जीनोम, और ये होस्ट जीनोम का क्या हो जाएगा, पार्ट बन जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रो वायरस। देन इट बिकम अ प्रो वायरस। एंड जब ये आपके पास जब प्रो वायरस बन जाएगा, अब क्या होगा, ये देन ये जो DNA अब इसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करेगा एंड इट मेक्स इट्स ओन DNA मॉलिक्यूल्स एंड HIV प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, जिसको हम क्या कहते हैं, इसकी रेप्लिकेशन होगी, DNA की में रेप्लिकेशन होगी इसकी, कि फर्दर न्यू DNA में मॉलिक्यूल्स बनते जाएंगे। और साथ साथ क्या होगा कि जो है एंजाइम्स और HIV प्रोटीन्स ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगी, ताकि जो है फर्दर जो है अब प्रोटीन और प्रोटीन्स बन सके, ताकि उसकी एंड पे क्या हो, ये जो कैप्सिड के अंदर जो है इसके RNA जो मटेरियल है उसको क्या किया जाए, वो पैक किया जाए, और इसके बाद जो एंजाइम्स और इसकी जो प्रोटीन्स की ज़रूरत है वो क्या हो, इधर असेंबली में रेडी हो, और ये साथ साथ मैचुरेशन होगी, तो ये साथ साथ पैक होते जाएंगे। जब मैच्योर पार्टिकल बन जाएंगे तो क्या होगा, ये एट लास्ट में आपके पास जो है वो इसकी इन्वेलप को, ये जो आउटर कवरिंग है इसको इसकी इन्वेलप बनाएगा और मूव कर जाएगा आउटसाइड, जिसको हम कहेंगे ये बडिंग की फॉर्म में एक बर्ड बना, और जिसकी फॉर्म में क्या हुआ, ये हॉट सेल से जो है ना मूव करता जाएगा और बडिंग ऑफ होती जाएगी और HIV वायरस प्रोड्यूस होते जाएंगे। और फिर फर्दर ये HIV वायरस जो है टी लिम्फोसाइट्स को साथ अटैक करेंगे और फर्दर हमारे जो टी लिम्फोसाइट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करते जाएंगे, और अल्टीमेटली हमारी इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हमारे इम्यून सेल्स इस काबिल नहीं रहेंगे कि वो जो है डिजीज़ के साथ मुकाबला कर सकें, जिसकी वजह से हमें जो है कॉम्प्लेक्स डिजीज़ और डिफरेंट डिजीज़ जो हैं अकर हो सकती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द HIV वायरस। अब सिम्टम्स क्या होते हैं कि जो प्रोटेक्शन है
जो हमारा इम्यून सिस्टम इसके ख़िलाफ़ जो एंटीबॉडी बनाता है वो तकरीबन 6 to 3 मंथ्स लग जाते हैं आफ्टर इन्फेक्शन के इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनना शुरू होती हैं। अर्ली सिम्टम क्या होते हैं कि हमें फीवर हो जाता है, स्वेलन हो जाते हैं हमारे लिम्फ नोड्स एंड ग्लैंड, और हमें मसल एचिस और मतलब हमें जो है हम रेडिशनेस हो जाएगी, मसल्स में भी दर्द होगी, और उसके अलावा जो फीवर भी इसकी वजह से होगा। अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेजन ये है कि बेसिकली वो डिजीज़ जो वैसे नहीं होती लेकिन एड्स होने की वजह से वो भी क्या हो जाएंगी, हम पर हावी हो जाएंगी। हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से दे आर एबल टू काज द डिजीज़ इन दिस पर्सन। तो सच डिजीज़ आर कॉल्ड द अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़। इट कैन बी एक्सप्लेन एज when the immunity system or immune system become weak due to the AIDS or other means, some parasites takes the advantage and cause the disease in this patient, which is then these diseases are called as the opportunistic diseases। या इसे हम opportunistic invasion भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, कैंडिडियासिस हो सकती है ऑफ इसोफेगस, ट्रैकिया, ब्रोंकस या लंग, कहीं पे भी जो है फंगल डिजीज़ काज कर सकती है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकती है ब्रेन के अंदर, सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, और इसी तरह रिकरेंट न्यूमोनिया जो है, न्यूमोनिया भी क्या है काज हो सकता है। तो ये बेसिकली अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेजन्स का मतलब ये है कि जो कमज़ोर से कमज़ोर माइक्रोब भी है या पैरासाइट है वो भी इस काबिल हो जाता है कि वो एड्स वाले पेशेंट के अंदर जो है वो क्या कर दे, डिजीज़ काज कर दे। तो इसको हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेजन। ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए, ट्रीटमेंट ऑफ एड्स की, तो इसके अभी तक जो है कोई वैक्सीनेशन नहीं बनी, लेकिन एंटीवायरल ड्रग्स जो है वो इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिनको हम एंटी HIV भी कहते हैं या रेट्रोवायरल ड्रग्स कहते हैं। विद ट्रीटमेंट इट टेक 15 years or more before developing AIDS। अगर ट्रीटमेंट शुरू भी की जाए तो एड्स डेवलप होने से पहले जो है अगर 15 साल लग सकते हैं कि जो है वो इनके साथ मुकाबला करते करते जो है वो जो है इम्यूनिटी को डेवलप करे और जो है वो एड्स काज ना हो सके। इसके लिए जो है वो जो थेरापी की जाती है उसे हाई एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरापी कहते हैं, जिसके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा जो है एंटी HIV मेडिकेशंस जो हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं और एड्स के ख़िलाफ़ जो है ये की जाएगी ताकि जो है एड्स का जो पेशेंट है वो सर्वाइव कर सके। तो ये तो बेसिकली मेडिकेशन है, क्योंकि मेडिकेशन से मुराद ये है कि आपको पहले भी पता है कि मेडिकेशन से वायरल डिजीज़ कंट्रोल नहीं की जा सकती। तो बेसिकली वो इम्यूनिटी को हमारी कमज़ोर करता रहता है, तो जिसकी वजह से क्या है एड्स काज हो जाती है। तो उसको बचने के लिए क्या है कि ये मुख्तलिफ ताकि वो उसके प्रोसेस को स्लो डाउन करे और जो है पेशेंट की जो है वो सर्वाइव कर सके। तो ये तो था किसके बारे में, ट्रीटमेंट्स ऑफ एड्स के बारे में। अभी तक जो है इसकी कोई ऐसी वैक्सीनेशन नहीं बन सकी। बहरहाल एंटी जो है HIV ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं ताकि एड्स के ख़िलाफ़ लड़ा जा सके। अगर हम इसकी ट्रांसमिशन और प्रिवेंशन की बात करें तो ट्रांसमिशन के अंदर जो है एड्स किसकी वजह से ट्रांसमिशन हो सकता है, बॉडी फ्लूइड, ब्लड, मतलब कि ब्लड या इसकी कंटामिनेटेड सिरिंज लग जाए या कोई भी जो है इमोरल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट हो जाए या किसी भी किस्म की अनस्टेरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो जाए या कंटामिनेटेड नीडल्स सिरिंजेस इस्तेमाल हो या किसी का ब्लड लग जाए। एड्स HIV वाले बंदे का ब्लड अगर ट्रांसफ्यूजन में लग जाए तो HIV वायरस काज हो सकता है। और जो है HIV वायरस जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो मदर से फीटस को भी काज कर देगा कि अगर इनटेक हो जाए, अगर वो मदर जो है वो फीड कराते मिल्क फीड कराए बेबीज़ को या जो है ब्लड की ट्रांसफ्यूजन हो जाए तो जिसकी वजह से जो है HIV वायरस जो है वो फीटस को भी काज कर सकता है। तो ये तो थी ट्रांसमिशन के बारे में कि एड्स कैसे ट्रांसमिट हो सकते हैं, कि बॉडी किसी भी पर्सन को कैसे ये लग सकते हैं। तो ये तो थे कि बेसिकली जो मतलब आप समझे कि जो कंटामिनेटेड चीज़ें हैं या नॉन स्टेरलाइज चीज़ें हैं या ब्लड की ट्रांसफ्यूजन हो जाए
they are all the way to causes the एड्स। अगर एड्स के पेशेंट से वो जो है वो जो किसी भी में से किसी चीज़ पे कोई अगर एड्स के पेशेंट से आप जो है कैरी किया हुआ उसने पहले इस्तेमाल हो चुकी है वो चीज़ और आप उससे कांटेक्ट कर लेते हैं तो जिसकी वजह से जो है वो जो एड्स है वो हेल्दी पर्सन को भी काज कर सकता है। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए क्या किया जा सकता है कि नॉट शेयर द यूज थिंग बाय HIV पेशेंट। जो ऐसी चीज़ें जैसे HIV पेशेंट जो है वो इस्तेमाल कर चुका हुआ है, टूथ ब्रश हो गया या कोई ऐसी चीज़ें जिनसे जो है वो लगने की चांसेस सब ज़्यादा बढ़ सकते हैं तो उन चीज़ों को इस्तेमाल ना किया जाए। सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़ है, इमोरल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में अगर कोई इन्वॉल्व है और कोई तो और उसकी वजह से भी क्या हो सकता है जो है एड्स काज हो सकती है। नॉट यूज कॉन्टेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। जो अगर कॉन्टेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो उसकी वजह से भी काज कर सकती है। अगर जो है बार बार एक ही सिरिंज इस्तेमाल की जाए तो उसकी वजह से भी जो है जो ये डिजीज़ काज की जा सकती है। अगर किसी पेशेंट को मौजूद है तो वो दूसरे हेल्दी पेशेंट को भी लग सकती है। और जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज किए जाएं ताकि जो है जो मुख्तलिफ़ किस्मों की डिजीज़ हैं जैसे एड्स की हम बात कर रहे हैं तो ताकि वो जो है हेल्दी पर्सन को काज ना करे। तो स्टेरिलाइजेशन जो है वो लाजमी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए ताकि जो है वो ताकि ये जो वायरल डिजीज़ है जो ताकि हम जो हेल्दी पर्सन है वो इससे बच सके। तो ये तो था HIV वायरस की लाइफ साइकिल के बारे में और इसके में हमने मुख्तलिफ जो हैं वो इसकी ट्रीटमेंट भी देखी और इसके अलावा इसकी प्रिवेंशन और ट्रांसमिशन के भी वे देखे और इनमें जिन जो डिजीज़ हैं उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो आज तो हमने HIV वायरस के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट टाइम जो है हम अदर वायरल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो अब ये बात अब आप याद रखें कि अब हमारे जो कॉलेज है वो खुलने वाला है। तो आप लोगों ने जो है इंशाल्लाह जब आप कॉलेज में आएंगे तो आप लोगों ने कोरोना से भी जो आपके ज़ाहिर बात है उससे भी हमने जो है बचना है। उसके लिए प्रिवेंशन मेजरमेंट्स हमें करनी है। तो उसके लिए भी आप लोगों ने मास्क का भी इस्तेमाल करना है, एक दूसरे से आपने जो है एहतियात करनी है और जो हदायत या जो SOPs आपको कॉलेज में इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी उसको भी आपने फॉलो करना है। तो अब हम नेक्स्ट टाइम जो है इंशाल्लाह कॉलेज में जो है वो आएंगे। जब आप लोग भी आ जाएंगे तो हम अपना जो है अपने जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं वो इंशाल्लाह हम कॉलेज में अब पढ़ेंगे। तो आपने जो है वो SOPs का बहुत ख्याल रखना है। आपको पता है हम वैसे भी वायरस का ही टॉपिक पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि वायरल ऐसी डिजीज़ है जिसकी अगर ये किसी पेशेंट को भी आके से लग जाए तो ये आपके सामने जैसे अभी हम ये एक बीमारी जो अभी हम डिस्कस की है तो इसका कोई इलाज इतनी जल्दी बंदा अभी कह नहीं सकता। तो इससे बचना भी है, दूसरों को भी हमने बचाना है। तो आप लोगों ने जो है जो SOPs हैं जैसे हाथ को बार बार धोना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, इसी तरह दूसरों को दोस्त यार जैसे आप कहें ज़ाहिर बात है ब्रेक टाइम भी आएगा तो उसमें आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करनी है ताकि जो है आप लोग अपने आप को भी बचा सकें और जो है वो दूसरों को भी बचा सकें। तो इसलिए बेस्ट आप लोगों ने जो है बहुत एहतियात करनी है। जो SOPs आपको बताई गई हैं उन पे फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट टाइम जो है वो अपने कॉलेज के अंदर हम आगे लेक्चर्स जो हैं पढ़ेंगे और जो अदर वाले डिजीज़ हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपने जो है ये बात याद रखनी है कि SOPs को लाजमी फॉलो करना है। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है हमारी मुलाकात कॉलेज में होगी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।